अब हम पढ़ेंगे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट हु आर associated with hospitals and clinics generally have regular work hours. At times, they may be required to work in shifts or on the weekend too. In this environment, they come in direct contact with patients and advise them appropriate diet based on the illness. In commercial food service, the working hours are usually irregular. The work in research is carried on in the laboratories, while in the most other assignments, their office is located near food preparation areas. Certain time needs to be spent in kitchen, which are usually hot. There are good career opportunities in the food industry too. Lot of food companies employ nutritionists and dietitians to check the nutritional quality of the food products for new product development and for marketing related advice. There is teamwork involved in experimenting on flavors and preparations. अब देखो वर्क एनवायरनमेंट में इन्होंने 3 टाइप्स के बताए हैं कि अगर हॉस्पिटल्स में रेगुलर वर्किंग आवर्स होता है जिसमें कभी-कभी शिफ्ट से बाहर भी काम करना पड़ता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट के साथ और उनके इलनेस के अकॉर्डिंग उनको डाइट बतानी पड़ती है। अगर हम कमर्शियल फूड सर्विस की बात करें उसमें थोड़ा किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब किचन में काम इन द सेंस किचन में सुपरवाइज आपको करना पड़ेगा, जो यूजुअली काफ़ी गर्म प्लेस रहती है। देन थर्ड इन्होंने बताया है करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो है फूड इंडस्ट्री की या फूड कंपनीज की, जिसमें वो एम्प्लॉय करते हैं अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस को, जो कि उनके फूड की प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब न्यूट्रिशन वगैरह को चेक करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं मार्केटिंग के लिए, फ्लेवर्स और प्रिपरेशन में भी उनके एक्सपेरिमेंटिंग में भी एक टीम वर्क रहता है डाइटिशियन का भी। Okay, then the job. The dietitians undertake the practical application of nutrition with both individual and population group to promote the well-being of individuals and communities to prevent nutrition-related problems. They are also involved in the diagnosis and dietary treatment of disease. Dietitians work with people who have special dietary needs, inform the general public about nutrition, give unbiased advice, evaluate and improve treatments, and educate clients, doctors, nurses, health professionals, and community groups. अब डाइटिशियन का बेसिकली काम क्या होता है? उनको जो जो सोसाइटी में डाइटरी नीड्स है उनको फुलफिल करने की, ट्रीटमेंट बताने की, कम्युनिटी की बेसिकली अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है डाइटिशियन। Okay, the dietitian can work in a variety of areas. As already mentioned earlier, many of these are in the hospital or in the community as clinical dietitians, nutrition health educators, or as managers. Both hospital and community dietitians educate people who need special diets as part of their medical treatment. For example, patients with kidney disease, food allergies, eating disorders, diabetes, HIV/AIDS, oncology, gastroenterology. There are also opportunities for dietitians to work outside the hospital setting in a variety of different areas such as food industry, education, research, business, charities, media, freelance work. अब बेसिकली अलग अलग कम्युनिटी बताई है, अलग अलग एरियाज बताए हैं जहाँ जहाँ डाइटिशियन काम कर सकते हैं, और कुछ कुछ इन्होंने स्पेशलिटीज़ भी बता रखी हैं, जैसे डायबिटीज़ के केसेस में, ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह में, ऑन्कोलॉजी में, इन सब एरियाज में भी डाइटिशियन जो स्पेशलिटी कर लेते हैं वो हो गया। आउटसाइड हॉस्पिटल में चाहे वो एजुकेशन से हो, रिसर्च वर्क हो, फ्रीलांस वर्क हो, फूड इंडस्ट्री में हो, ये अलग अलग एरियाज में डाइटिशियन का एक रोल प्ले होता है। Then personality. Dietitians have special skills in translating scientific and medical decisions related to food and health to inform the general public. They also play an important role in health promotion. A variety of skills need to be possessed by them, which include techniques of interviewing, counseling, ability to relate to individuals and groups, effectiveness in bringing about change, capacity for self-understanding, establishment of professionalism, disciplinary relationship, and knowledge of personality, group, and societal dynamics. बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। उनकी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो या ग्रुप के लेवल पे हो। हेल्थ प्रमोशन उनको करनी है तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, तो उसके लिए उनको काउंसलिंग आनी चाहिए, इंटरव्यू लेना आना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब चेंज लाने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, फिर डिसिप्लिन होना चाहिए एक, ठीक है। तो इन ऑल अ डाइटिशियन वुड नीड टू हैव एन इंटरेस्ट इन साइंस, people and food, and ability to explain complex things simply, a positive and motivating attitude, non-discriminatory approach, as well as patience and a sense of humor. If a dietitian has these skills, she can assist others or herself to be able to assess many or all dimensions of a problem
explore alternative solution, and stimulate action towards positive change and problem resolution. So then, as a student of dietetics, we hope you have the personality and the interest to work and excel in this area. So basically ये बता रहे हैं कि डाइटिशियन की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस में, पीपल में, फूड में, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वो सिंपली बता सके, मोटिवेट कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव चेंज ला सके बेसिकली सोसाइटी में। और ताकि वो उनके डाइट अगर चेंज कर रहे हैं तो वो तभी तो टेकअप करेंगे ना जब आपकी बात सुनेंगे। तो बेसिकली उनमें एक पर्सनैलिटी ये होनी चाहिए डाइटिशियंस में। Then with this we end our study of dietetics and role of a dietitian. Next we will explore the nutritional care process, but first let us recapitulate what we have learned so far. So basically अभी तक हमने जो बात कर लिया उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में इसमें लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डाइटेटिक्स। तो डाइटेटिक्स क्या था? Dietetics is the science and art of feeding individual based on the principles of nutrition. So basically हमें ना ये जरूर याद रखना है इसमें कि principles of nutrition के अकॉर्डिंग हम अगर किसी को भी उसके डाइट चार्ट बना रहे हैं या फीड कर रहे हैं, बेसिकली साइंस एंड आर्ट ऑफ फीडिंग, ठीक है। तो साइंस एंड आर्ट तो आप लगा ही दोगे। आप फीड कर रहे हो इंडिविजुअल को या ग्रुप को बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, तो उसको डाइटेटिक्स कहते हैं। फिर है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। क्या है? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इज डिफाइंड एज द असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट followed by nutritional therapy ranging from diet modification to the administration of enteral and parenteral nutrition. अब बेसिकली हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन हो गया बेसिकली, ठीक है, ये प्रैक्टिकल हो गया। डाइटेटिक्स तो थ्योरी हो गया, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जिसको हम MNT भी कहते हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट हो गया या इंडिविजुअल का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं उसका पूरा। हम केस लेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, हम उस असेसमेंट करने के बाद उसका स्टेटस देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट चार्ट बनाएंगे या मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, उसके खाने पीने की रेंज को। देन उसके बाद अब अगर उसको हम रूट देखेंगे कि रूट उसका माउथ ओरल रूट है, एंटेरल रूट है, पेरेंट रूट है, ये पूरी चीजें जो आ गई है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर आता है। देन है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। Therapeutic nutrition is the study of the role of food and nutrition in the treatment of various diseases and disorders. Therapeutic nutrition नाम से पता चल रहा है थेरेपी न्यूट्रिशन के द्वारा। तो कोई इलनेस है, कोई डिजीज है, उसमें हम न्यूट्रिशन को लगा रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन या न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट, ठीक है, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो, इसको हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देन नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। कमेंट। अब इसमें क्या है, अ गुड एंड बैलेंस्ड डाइट improves the quality of life to a great extent. Poor eating habits and inadequate food intake are the major cause of a disease. A well-balanced diet, which is adequate nutritionally, goes a long way in protecting the human body from diseases. That is, increases immunocompetence, strengthens mental functions, and supports good physical strength. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसकी डाइट अच्छी होगी, ठीक है, बैलेंस डाइट होगी, गुड होगी, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी एक अच्छे एक्सटेंट तक। अगर पुअर ईटिंग हैबिट होगी, इनएडिक्वेट होगा फूड इंटेक, तो बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी, और बीमारियां ज़्यादा लगेंगी तो ऑब्वियसली उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। फिर अगर उसकी वेल बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशनली वो एडिक्वेट है, तो उसकी डिजीज होने की भी चांसेस कम होगा, उसको उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, फिजिकल या मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सारा हमारा यही इसका आंसर हो गया कि कैसे डाइट और न्यूट्रिशन क्रूशियल रोल प्ले करता है वेलबींग ऑफ पीपल में। अब है व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर डाइटिशियंस, ब्रीफली हाईलाइट द रोल ऑफ क्लिनिकल डाइटिशियन। तो अब देखते हैं इसका आंसर। The major areas of specialization for a dietitian include administration, education, clinical research, community consultations, teaching and academics. अब देखो, अभी हम इतनी देर से यही बात कर रहे थे कि अलग अलग फील्ड में कहाँ कहाँ काम करता है न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हमारा पहले था क्लिनिकल डाइटिशियन, ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। क्लिनिकल डाइटिशियन में हम क्या करेंगे, अब वो चाहे प्राइवेट हो या हॉस्पिटल सेक्टर में हो या नर्सिंग होम्स में हो, क्लिनिकल डाइटिशियन क्या करता है, वो पेशेंट को देख के असेस करके, थेरेपेटिक डाइटिशियन के भी कहते हैं हम क्लिनिकल डाइटिशियन को, तो वो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से ठीक करना चाहता है पेशेंट को।
Depending on the nutritional needs of the patient, they prepare their diet chart and monitor the results of diet therapy. ठीक है. They confer with doctors and other members of the healthcare team about patients' nutritional care, instruct patients with and the families on the requirements and importance of their diets, and suggest a way to maintain these diets at home. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो क्लिनिकल डाइटिशियन का रोल प्ले कर रहा है तो वो डॉक्टर्स के साथ या अलग टीम के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की, रूट की, राइट. बाकी दूसरा रिसर्च फील्ड हो गया, कम्युनिटी में हो गया, टीचिंग में हो गया. ठीक है, ये सारे अलग अलग फील्ड्स हैं. अब हम देखेंगे द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, जिसको हम एनसीपी भी कहते हैं. अभी तक हमने बेसिक बात की थी. मेन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है जो एग्जाम्स पे भी आते हैं. द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, एनसीपी. The nutritional care process is a systemic and logical approach to ensure effective and successful nutrition intervention. ओके, अब इसका इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि एक ये सिस्टमिक अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच है, ताकि इफेक्टिव और सक्सेसफुल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन हो. ठीक है, मतलब अगर कोई माल नरिशमेंट है किसी को, तो हम उनका प्रॉपरली एक लॉजिकल अप्रोच निकालेंगे ताकि जो हम न्यूट्रिशन उसको देंगे, इंटरवेंशन करेंगे न्यूट्रिशन का, वो एक सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव हो. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन याद करना. द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस इज अ सिस्टमिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू इंश्योर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल nutrition intervention. The American Dietetic Association (ADA) defines the nutrition care process as a systemic problem-solving method that dietetic professionals use to critically think and make decisions to address nutrition-related problems and provide safe and effective quality nutrition care. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन जो है, उन्होंने इस चीज़ को, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस को कैसे डिफाइन करा है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक सिस्टमिक तरीके से, जिसमें अलग अलग डाइटेटिक प्रोफेशनल मिलके एक क्रिटिकली थिंक करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं, और ताकि सेफ और एक इफेक्टिव न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, मतलब एक solution मिल सके. The purpose of the NCP is to give the dietetic professionals a consistent and systemic structure and method by which to think critically and make decisions. It also assists dietetics professionals to scientifically and holistically manage nutrition care, thus helping patients better meet their health and nutrition goals. वही बात बोली है उन्होंने कि मिलके काम करते हैं, holistically करते हैं ताकि better goal achievement हो. Here it is important to emphasize that the nutrition care process is a standardized process for dietetic professionals and not means to provide standardized care. ये एक standardized process होता है, ठीक है, fixed process होता है, जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस है. A standardized process here refers to a consistent structure and framework used to provide nutrition care, whereas standardized care infers that all patient clients receive the same care. अब देखो, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और स्टैंडर्डाइज केयर के इन्होंने डिफरेंस बताया है. स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कहते हैं कि अगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर हो, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, ठीक है, जिससे हम न्यूट्रिशन केयर देते हैं. पर स्टैंडर्डाइज केयर का मतलब होता है कि पेशेंट या क्लाइंट को एक एक जैसा सेम केयर देना. तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में हम मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स करते हैं कि उसकी नीड क्या है, पर स्टैंडर्डाइज केयर में हो जाता है कि सेम केयर. Thus, the nutrition care process supports and promotes individualized care, not standardized care. वही जो भी मैंने बात बोली कि जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है ना, ये इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइड करता है, नॉट स्टैंडर्डाइज. मतलब अगर कोई पेशेंट सपोज कोई पेशेंट मालनरिश्ड है, ठीक है, और उसको केयर की जरूरत है. मालनरिश्ड है मतलब उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो. ऐसी कोई ओबीज है और उसको फैट रिक्वायरमेंट कम चाहिए. अब ये इनका इंडिविजुअल केयर हो गया. ये वाली चीज हमारी एनसीपी का एग्जांपल हो गया कि हम अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल उनको केयर दे रहे हैं. स्टैंडर्डाइज केयर का मतलब होता है कि भाई हर एक को प्रोटीन एक जैसा हो, हर एक को फैट एक जैसा हो, तो ऐसा नहीं होता. द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस knowledges the common dimension of practice by the following: defining a common language that allows nutrition practice to be more measurable, creating a format that enables the process to generate qualitative and quantitative data that can be analyzed and interpreted, and serving as a structure to validate nutrition care and showing how the nutrition care that was provided does what it intends to do. तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, प्रैक्टिस कर सके. ठीक है, एक फॉर्मेट
होना चाहिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा का, ताकि एनालिसिस हो सके, इंटरप्रेट हो सके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सर्व हम करें। तो ये इन्होंने बेसिक चीज़ बताई है। Then, working closely with the physician, you as a dietetic professional should determine an individual's nutritional therapy need and plan of care. As represented in figure 1.2, the relationship between the patient, client, group and dietetic professional is at the core of the nutritional care process. अब ये बता रहे हैं कि हम फिजिशियन से जब हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे मिलके, तो इंडिविजुअल थेरेपी और प्लान ऑफ केयर, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा रिलेशनशिप हमारा पेशेंट से या क्लाइंट से या ग्रुप से और डाइटिशियन प्रोफेशनल जो है उससे। तो इन सब में हमारा एक लिंक बन जाता है। Therefore, nutrition care provided by dietitian or other qualified dietetic professional should always reflect both the state of the science and state of the art of dietetic practice to meet the individual need of each patient, client और group। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिशनल केयर हम प्रोवाइड करते हैं डाइटिशियन, तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उसके साइंस एंड आर्ट हम कैसे लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल या जिस पेशेंट को आप दे रहे हो या ग्रुप को दे रहे हो। ठीक है, एक बेसिकली यहाँ पे मॉडल बना रखा है इन्होंने, न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस एंड मॉडल। इसका हम मॉडल देख लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट क्लाइंट ग्रुप एंड डायटेटिक्स प्रोफेशनल। ठीक है, ये बीच में हमने लिखा हुआ है। अब क्या क्या हो सकता है इसमें, न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। असेसमेंट में क्या क्या आता है कि हमें कलेक्ट करना है डाटा, ठीक है, ऑब्टेन करना है डाटा, उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है एविडेंस को, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है। फिर उसको हमें डायग्नोज करना है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, आइडेंटिटी एंड लेबल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको लेबल करना है, डायग्नोज करना है बेसिकली। डिटरमाइन कॉज कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सपोज डायबिटीज का कोई पेशेंट है, उसका रिस्क फैक्टर हो गया हाई शुगर कंटेंट, तो हमें वो डायग्नोज करना है, डिटरमाइन करना है कॉजेज। क्लस्टर साइंस एंड सिम्टम्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉक्यूमेंट्स। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ये हर उसमें ही आ गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट चारों में ही आएगा। ठीक है, तो पहले हमने असेस करा, डायग्नोज करा, अब हम इंटरवेंशन करेंगे कि हमारे को, अब हमने डायग्नोज कर दी कोई बीमारी, अब हम उसमें देंगे क्या। प्लान करेंगे हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिटरमाइन अ प्लान ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, केयर इज डिलीवर्ड एंड एक्शन आर कैरिड आउट। तो बेसिकली वही है कि हमने प्लान करा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, हमने इंटरवेंशन दी उसकी, और डॉक्यूमेंटेशन तो करी करी। इसके बाद ये हमारा हो गया न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। तो पहला था न्यूट्रिशनल असेसमेंट, दूसरा था डायग्नोसिस, थर्ड था इंटरवेंशन। अब हम इवेल्युएशन करेंगे कि अब हमने जो दे दिया उसका क्या रिजल्ट आया, मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कितनी रही, क्या आउटकम रहा, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी करेंगे। तो ये हमारा पूरा मॉडल हो गया न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस का। इसमें देख लीजिए क्लिनिकल थिंकिंग करनी है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये सब स्किल्स होनी चाहिए, ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ये सब आ जाता है एजुकेशन में। क्या आपने सोशल साइंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक्स, सब इसमें ही आ जाता है। स्क्रीनिंग एंड रेफरल सिस्टम, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, यूज अप्रोप्रिएट टूल्स मेथड्स। ठीक है, टूल्स मेथड्स में जैसे इंटरव्यू हो गया, कौन सा टूल, या फिर आपने उनसे डाटा मतलब उनसे पेजेस भरवाए हैं क्या, जो यूट्यूब पे भी हम लोग देखते हैं कि वो टिक करवाते हैं एमसीक्यू टाइप में, या फिर इंटरव्यू लिया है आपने वन ऑन वन, वो सब टूल्स में आ जाता है। फिर आउटकम्स मैनेजमेंट सिस्टम में क्या लिखा है कि मॉनिटर करेंगे सक्सेस ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को, इवैल्यूएट करेंगे डाटा को। ठीक है, तो बेसिकली हमें ऐसे नहीं लिखना, ये ऐसे डायग्राम के बजाय हम ऐसे लिखना है कि असेसमेंट 1, डायग्नोसिस 2, इंटरवेंशन 3 एंड मॉनिटर इवैल्यूएशन 4। बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडल को। The other factors that influence and impact on the quality of nutrition care are also highlighted in figure 1.2. The strength and abilities that dietetic professionals bring to the process, namely dietetic knowledge, skills and competencies, critical thinking, collaboration and communication, evidence-based practice are highlighted in the middle ring of the process. In the figure, environmental factors, particularly practice setting, healthcare system, social system and economics influence the process. The nutritional care process consists of 4 distinct but interrelated and connected steps, include assessment, diagnosis, intervention and evaluation, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बेसिकली यही बता रहा है कि हमने नॉलेज भी लगानी है,
ठीक है, स्किल्स भी लगानी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एविडेंस पता होना चाहिए हमें। ये सारा भी हमारा न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस के अंडर ही आता है। फिर हमें फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे जो जो हैम्पर करते हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम को, चाहे वो सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, वो सारा। बाकी मेन हमारा यही है कि असेस करेंगे, डायग्नोस करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस, जो कि हमने देखा है कि चारों में डॉक्यूमेंटेशन आया ही आया। लेट अस नाउ डिस्कस ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन डिटेल। अब हम इसमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे।